afternoon everyone. I, Priyanka Nagaria, Assistant Professor, Biyani Group of Colleges. Today I am going to discuss how to prepare your CV and how to make it more attractive to the recruiter. As we all know, CV, which we can say curriculum vitae, is a first phase of ours as a job seeker when we are applying for a job interview, right? So whenever we apply for an interview, जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो जो रिज्यूमे होता है वो हमारा फर्स्ट पेज होता है एज आई टोल्ड यू. अभी रिज्यूमे को डिज़ाइन कैसे करना है, इसको इम्प्रेसिव और अट्रैक्टिव कैसे बनाना है जिससे जो रिक्रूटर है वो फर्स्ट लुक में ही आपको शॉर्टलिस्ट कर ले, आपके रिज्यूमे के फर्स्ट लुक से ही उसको शॉर्टलिस्ट कर ले. तो हियर आई एम गोइंग टू गिव वेरी सिंपल टिप्स हाउ टू प्रिपेयर योर CV और योर रिज्यूमे, राइट. सो फर्स्ट and important thing here while preparing your resume, always mention your contact detail on the top in the right margin side, because जब भी आप रिज्यूमे को फाइल करते हैं, यदि आपको जो रिक्रूटर है आपको शॉर्टलिस्ट करता है, राइट, सो आपका जो कॉन्टैक्ट आईडी, आपका मेल आईडी है, आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है, वो सारी चीज़ें उसको फर्स्ट लुक में ऊपर ही देखने के लिए मिल जाती है. सो ऑलवेज राइट योर कॉन्टैक्ट डिटेल ऑन द टॉप ऑफ योर रिज्यूमे. In your contact detail you can write your address and your contact number, your mail ID. If you have any LinkedIn account, you can also give a website HTML address of your LinkedIn account. Now second, always write your name with bold letters. अपने नाम को हमेशा बोल्ड लेटर में लिखिए. इफ़ यू आर मिस, मिसेस, मिस्टर, हमेशा जो आपका फर्स्ट लेटर, फर्स्ट नेम है, उसके आगे इस चीज़ को ध्यान रखिए लगाने के लिए. नाउ ओपनिंग स्टेटमेंट, this is the most important thing of your resume or your CV, your opening statement. In your opening statement, clearly mention your career objective. What is your objective in from your career, in your future career? That's it. And after your opening objective, ये opening objective को आप थोड़ा सा flexible भी रख सकते हैं as per your रिक्वायरमेंट, योर कंपनीज रिक्वायरमेंट, आप उसको चेंज कर सकते हैं. लाइक कई बार जब भी हम रिज्यूमे डिज़ाइन करते हैं, ओके, सो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप एक बार उस कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव अपने जो करियर ऑब्जेक्टिव है उससे सिमिलर मैच करता हुआ बना सकते हैं या फ्रेम कर सकते हैं. नाउ next important thing in your CV is your skill set and ability set. After opening statement, the second important thing in your resume or CV is, as I told you, your skill and ability set. इस skill and ability set में आपके जो भी skills हैं, suppose you are a very good communicator, your communication skill is very effective, you can write down as in your skill. Then if you have highly motivated person or self-motivated person, you can write down it here. Then suppose you are a very hard-working person, you can write your quality, this quality as well. If you have a leadership quality and you have already led a team, like जितने भी members की आपने team जो है lead किया हुआ है, आप वो भी वहाँ पर लिख सकते हैं. So basically आपका जो skill and ability set होता है, वो एक जो column होता है, यहाँ पर आपको अपने प्रोफेशनल स्किल्स को पर्सनल टच में डिज़ाइन करके शो करना है ताकि जो एम्प्लॉयर है वो भी उस चीज़ को समझ पाए कि व्हाट यू आर एंड व्हाट यू आर गुड एट. ओके, सो ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको अपने स्किल सेट में शो करना है. नाउ coming to my third point, that is your technical skill. First, as I told you, opening statement or career objective we can say. Second is skills and ability set. Now third is technical skills. If you have done any diploma or certification in IT or in technical terms, तो आप वो भी वहाँ पर mention कर सकते हैं. Suppose if you have सर्टिफिकेट ऑफ MS Office, Tally, .NET etc. तो आप वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. सपोज इफ़ यू डोंट हैव एनी सर्टिफिकेट, ओके, then also you can write down you are good at MS Office, because this is a very basic thing जो हर किसी को आज की डेट में required होती है. So this is the thing. Now next is after your technical skill set, your qualification, that means that box which is showing your एजुकेशनल बैकग्राउंड. इस एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले जो सेक्शन में आपको अपना एक फॉर्मेट जो है, बेसिकली देयर इज़ नो पर्टिकुलर लेआउट और फॉर्मेट टू डिज़ाइन अ CV, बट स्टिल कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए. सपोज जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है आपके CV को डिज़ाइन करते हुए, ओके,
फर्स्ट आपका जो लेटेस्ट से लास्ट जो भी आपका क्वालिफिकेशन रहा है, सपोज इफ़ यू आर परस्यूइंग एनी पीजी कोर्सेज, सो परस्यूइंग Master in Business Administration from this college affiliated with this university from the batch, जो भी आपका बैच है 2018 2019, अब वो वहाँ पे मेंशन कीजिए. इफ़ यू आर परस्यूइंग योर MBA, दैट मीन्स यू कैन नॉट राइट योर एक्चुअल परसेंटेज. वहाँ पर जो परसेंटेज वाला कॉलम होगा वहाँ पर आपको लिखना होगा एग्रीगेट परसेंटेज. इन योर UG सेक्शन यू कैन राइट डाउन, suppose you have done BBA, that is Bachelor of Business Administration, Bachelor of Business Administration. If you have done if you have taken any specialization subjects, suppose HR or marketing or finance or international business, in bracket you can write down there. And from again this college and affiliated with this university, जो भी आपका बैच ईयर है वो बैच ईयर के साथ में आपके जो भी परसेंटेज है. What I am trying to say is, फर्स्ट ऑलवेज मेंशन योर हाईएस्ट डिग्री, देन उसके बाद में उसके पहले जो भी आपका पीजी का या यूजी का डिग्री है वो आप वहाँ पे शो कीजिए 12th एंड 10th, सो दैट जो रिक्रूटर है उसको क्लियर कट आइडिया मिले कि आपका जो करंट स्टेटस है ओके वो प्लस आपका जो पास्ट स्टेटस है वो किस तरह से है. इफ़ देयर एनी गैप, यदि सपोज आपके यूजी से पीजी के बीच में कुछ लोगों का इस तरह से लाइक कि वो यदि उन्होंने यूजी किया हुआ उसके बाद में पीजी करने के लिए बीच में वो कुछ जॉब एक्सपीरियंस भी लेते, देन दे डू देयर पीजी कोर्सेज, तो इसके लिए यदि सपोज आपका गैप है तो प्लीज़ आप वहाँ पर वो भी मेंशन कीजिए कि इस ईयर से इस ईयर में आपके इफ़ यू हैव एनी गैप तो उसका रीज़न. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, experience column. Of course this is basically the bone or the life of your CV, जहाँ पर आप अपना जो experience है अपने own words में लिखते हैं, whatever you have done in your previous company or your इंस्टीट्यूशन और जहाँ पे भी आप इससे पहले रिक्रूटेड थे. सो फर्स्ट आपका जहाँ जब भी आपकी ज्वाइनिंग डेट है वो से लेके किस टाइम तक आपने वहाँ पे जॉब किया हुआ है, टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ओके. देन जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडरटेकन बाय यू, आपने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस कंपनी में उस इंस्टीट्यूट में ली हुई है उस प्लेस पे ली हुई है, आपको वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे मेंशन करनी. दिस गिव्स रिच लुक टू योर CV. नाउ of course if you are a teacher, if you are a working professional और इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, ये चीज़ आप ध्यान रखिए. कई बार ऐसा होता है फ्रेशर्स बोलते हैं कि भाई हमारे रिज्यूमे में इस तरह से लिखने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो हम उसमें क्या लिख सकते हैं. यदि हमें एक्सपीरियंस दिखाना है तो हम एक्सपीरियंस में क्या चीज़ शो कर सकते हैं. सो बेसिकली इफ़ यू आर स्टूडेंट, आप लोग कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं व्हेन यू आर स्टडिंग योर पीजी कोर्सेज और योर यूजी कोर्सेज, आप लोग इंटर्नशिप भी लेते हैं, आप लोग ट्रेनिंग्स पे जाते हैं बाहर ओके. सो ये जितनी भी इंटर्नशिप्स हैं ट्रेनिंग्स हैं उनके एक्सपीरियंस भी आप अपने एक्सपीरियंस जो आपका कॉलम है वहाँ पर शो कर सकते हैं. सपोज यू हैव डन समर इंटर्नशिप ऑफ 45 days फ्रॉम ICICI बैंक और HDFC बैंक और XYZ एनी इंस्टीट्यूशन, सो आप वहाँ पर वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट पॉइंट, आगे इसमें आपका अचीवमेंट्स एंड आपके जो भी रिवॉर्ड्स हैं. सपोज इफ़ यू हैव पार्टिसिपेटेड इनटू सम वर्कशॉप और सम एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यू हैव सिक्योर्ड योर पोजीशन और यू हैव रिवॉर्डेड विद सम प्राइजेस, तो आपका ये जो जितने भी आपके पार्टिसिपेशन है ये सभी कुछ आएगा अचीवमेंट एंड रिवॉर्ड्स में. सपोज इफ़ यू हैव पार्टिसिपेटेड और ऑर्गेनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड एनी इवेंट, तो उसको भी आप वहाँ पर शो कर सकते हैं कि यू हैव पार्टिसिपेटेड इनटू दिस कंपटीशन, यू हैव ऑर्गेनाइज सच इवेंट. तो ये आपकी रिज्यूमे की लेंथ को भी मेंटेन करके रखता है, साथ ही साथ जो रिक्रूटर है उसको भी एक क्लियर कट एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि आप किस तरह के पर्सन हैं, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या इनिशिएट लिया हुआ है राइट, आपने किस तरह के एग्ज़ाम्स जो हैं अभी तक फेस किए हुए हैं, या फिर सपोज आपके जो भी अचीवमेंट्स हैं वो भी वो क्लियरली देख सकते हैं. नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ यू आर अ रिसर्च स्कॉलर ओके. सो रिसर्च स्कॉलर के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, इफ़ यू आर पब्लिशिंग योर रिसर्च पेपर टू एनी जर्नल और आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश कर रहे हैं, सो क्लियरली मेंशन योर रिसर्च पेपर टाइटल, जो भी वॉल्यूम है उस जर्नल का, किस ईयर में किया हुआ है, वो सारी चीज़ें क्लियरली आप वहाँ पे शो कीजिए. ये से भी आपकी रिज्यूमे की रिचनेस जो है वो इंक्रीज़ होती है. नाउ कमिंग टू द लास्ट कॉलम, जहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स देते हैं. ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था आपको जो कॉन्टैक्ट डिटेल देनी होती है वो हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आप टॉप में रिज्यूमे पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल को रखें.
इन द लास्ट आप अपने रिज्यूमे में आपका डेट ऑफ बर्थ, देन योर लैंग्वेज जिसमें प्रेफरेंसेस जो है आपको एटलीस्ट एक या दो लोकल लैंग्वेज आना चाहिए. ऑफ कोर्स इंग्लिश इज़ मस्ट नाउ डेज, तो इंग्लिश प्लस अदर लैंग्वेजेस जो भी आपको आते हैं आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. देन ऑफ कोर्स नेशनैलिटी, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर सम MNCs तो आप वहाँ पर अपनी नेशनैलिटी भी मेंशन कर सकते हैं. लास्टली डेट एंड योर सिग्नेचर एंड ऑफ कोर्स आपका जो भी एक्नॉलेजमेंट है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ वो आपके हिसाब से एकदम करेक्ट है. सो ये कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं मैंने आपको बताया कि अपने रिज्यूमे को या अपने CV को डिज़ाइन करते हुए आपको ध्यान में रखना चाहिए. नाउ बेसिकली लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि रिज्यूमे और CV बोथ आर सेम थिंग और व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. ऑफ कोर्स देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड ये जो रिज्यूमे जो वर्ड है एंड जो करिकुलम या CV जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों ही वर्ड्स या ये जो दोनों ही डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपने आप में काफ़ी अलग है. रिज्यूमे में आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो काफ़ी प्रिसाइज होती है, शॉर्ट होती है एंड क्लियर होती है. जितना रिक्वायर्ड होता है उतनी ही इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन इफ़ आई कैन से. यदि आप बात कर रहे हैं CV की, तो CV इज़ अ मोर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ रिज्यूमे, जहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को स्टेटमेंट वाइज, नॉट इन पॉइंट वाइज. जैसे मैंने आपको बताया रिज्यूमे में आप जब इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप पॉइंट वाइज इन्फॉर्मेशन देते हैं. CV की जब भी हम बात करें तो यहाँ पर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपका क्वालिफिकेशन है, आपके स्किल सेट हैं, तो वो पॉइंट्स में देने की बजाय वो स्टेटमेंट में थोड़े से एलैबोरेटिव फॉर्म में हम देते हैं. Hope this video would be helpful to you for designing your resume. Thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel and this video, and visit our website, that is gurukpo.com. Thank you very much.